today I will tell you a special topic about which students are very confused. We were also confused in our time that what we have to read and which books we have to read next in math subject and what are the branches of mathematics. So my topic today is branches of mathematics. There are two main branches of mathematics. I will give separate definition of all of these branches. The two main branches are pure mathematics and applied mathematics. And in pure mathematics, there are five main other branches, and in applied, there are four other main branches. In pure maths, the first branch is number theory, and we can define as number theory the study of integer and arithmetic functions, and we can do different calculation in this number theory. The second branch is algebra, and we can define algebra. Algebra is the branch of maths deal with variable, constant and operands. There are so many calculation chapters we can solve it in algebra. The third branch is geometry. Geo mean earth and metry mean measurement. So we can define geometry as the branch of maths deal with measurement, property and relationship of point, line, angle, surface and solids. The fourth branch is arithmetics. Arithmetic can be defined as it deal with the study of numbers using various operation. And the last branch of pure mathematics is combination. We can define combination as the combination is defined as an arrangement of object where the order in which the objects are selected does not matter. There are four branches of applied maths. The first branch is calculus, and we can define calculus as a mathematical study of change. It concerned with two basic operation, differentiation and integration. The second branch of applied maths is set theory. The set theory, we can define it as the branch of mathematics that deal with the property of well-defined collection of objects. The third branch is statistic probability. Statistic is the branch of applied mathematics that involve the collection, description, analysis, inference and of conclusion from quantity data. And the fourth one is trigonometry. We can define trigonometry as the branch of mathematics concerned with the specific functions of angles and their application of calculation. I will give a separate example of all of these branches. Now I want to use Urdu because I want that every student know well. So the फर्स्ट ब्रांच जो है नंबर सिस्टम है प्योर मैथमेटिक्स का. नंबर सिस्टम में बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल ये आता है. मैं छोटी सी एग्जांपल लिखी हुई है कि चेंज एक क्वेश्चन है 27 और उसको मैंने लिखा हुआ है कि चेंज इनटू बाइनरी. सो यहाँ पर बाइनरी में इसको चेंज किया हुआ है और बाइनरी का मतलब है 2, तो 2 पर इसको डिवाइड किया हुआ है, तो लास्ट में जो आंसर आया है वो उसको लिखा हुआ है और फिर बेस जो है वो 2 बनाया है, क्योंकि बाइनरी का मतलब 2 है, ऑक्टल 8 को कहते हैं और डेसिमल 10. तो नंबर सिस्टम जो है वो फर्स्ट ब्रांच है प्योर मैथमेटिक्स का. स्टूडेंट्स मैं आपको ये बात कह दूं, क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने अभी जो एग्जांपल मैं अभी लिखवाने जा रही हूँ, हर ब्रांच के साथ मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको. तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सोल्यूशन आपको कैलकुलेशन के साथ दे रही हूँ, नहीं, बल्कि ये सिंपल सी एग्जांपल मैं दे रही हूँ. फिर बाद में हम इसको अलग अलग कैलकुलेशन के साथ करेंगे, फिर अरिथमेटिक से शुरू करेंगे और हर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के साथ और मुख्तलिफ बुक्स को लेकर मैं क्वेश्चंस कैलकुलेट करूँगी. तो ये सिर्फ छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको. सेकेंड ब्रांच अलजेब्रा है. इसके बारे में जो मैं आपको कह चुकी हूँ कि इसकी मैं एग्जांपल दूंगी. तो फॉर एग्जांपल छोटी सी एग्जांपल मैं दे रही हूँ यहाँ पे एडिशन का, कि जहाँ पे अलजेब्रा की डेफिनेशन में हम ये पढ़ चुके हैं कि अलजेब्रा जो है वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट के कैलकुलेशंस को कहा जाता है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें होते हैं. तो फर्स्ट मैं ऐसी ही एग्जांपल छोटी सी दे रही हूँ एडिशन का. फॉर एग्जांपल ये जो अलजेब्रा का एक एक्सप्रेशन है उसको मैंने ऐड किया हुआ है ये कैलकुलेशन. तो इसमें और बहुत सी ऐसी कैलकुलेशन है, बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं अलजेब्रा में. छोटी सी एग्जांपल मैं आपको अलजेब्रा की
मैं दे चुकी हूँ। थर्ड है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में मैंने आपको डेफिनेशन में ये बताया था कि लाइन और ये शेप्स हैं, इनमें सारे हम पढ़ते हैं, पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो मैं छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे दे रही हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जांपल कि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ज्योमेट्री में। तो ये इसकी एग्जांपल है ज्योमेट्री की कि हम 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करें या कोई ट्राइंगल ड्रा करें या कोई एंगल बनाएं। फोर्थ वन एरिथमेटिक्स। एरिथमेटिक में हम कोई भी फ्रैक्शन करें, कोई भी कैलकुलेशन करें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो मैंने छोटी सी एग्जांपल दी हुई है फ्रैक्शन की, एडिशन की, 2/3 + 3/9। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये मैं अलग अलग आपको फिर बताऊंगी भी, एक एक जो भी हम ब्रांच पढ़ेंगे तो शुरू से स्टार्ट करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी, जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करूंगी। यहाँ पे मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अरिथमेटिक्स में हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने इस तरह से सॉल्व किया है। कैसे इसको सॉल्व करते हैं फिर ये मैं आपको आगे जाके समझाऊंगी। फिफ्थ ब्रांच इज कम्बिनेशन। और कम्बिनेशन के बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं, बहुत से फार्मूलाज हैं। मैं सिंपल फार्मूला आपको बता देती हूँ कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इसकी वैल्यूज़ हमें गिवन होगी, ठीक है। वो हमें पुट करके जब हम इसको रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 3 आंसर है। इसकी कैलकुलेशन में आप कंफ्यूज ना हो कि हमें समझ नहीं आई, तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि इस कम्बिनेशन में इस तरह टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। Now we start applied mathematics. So the first branch is calculus and मैं आपको बता चुकी हूँ इसकी डेफिनेशन में कि इसमें हम डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। तो मैं इस छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको डिफरेंशिएशन की दी हुई है, तो इसमें हम कैलकुलस में ये पढ़ते हैं। ये डिफरेंशिएशन है, फिर आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसके क्या कौन कौन से मेथड है, किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने डिफरेंशिएशन की एक मिसाल आपको दी हुई है। सेकेंड ब्रांच है सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में छोटी सी एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। ए का सेट है, बी का सेट है, ए यूनियन बी अगर हम फॉर एग्जांपल इसमें निकालते हैं तो यूनियन बी कैसे निकलता है, कैसे इसमें पूरी सेट की पूरी चैप्टर की वीडियोस में बनाऊंगी, मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि हम यूनियन निकालें तो जो आंसर आएगा इसी तरह के ए यूनियन बी, तो ये सेट थ्योरी में आ जाएगा। थर्ड है हमारे पास स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक में छोटी सी एग्जांपल है सिंपल सी, मीन x बार की, उसका फार्मूला समेशन x/n है। उनको वैल्यूज़ हमें दी हुई होंगी, उनको प्लस करके उनके नंबर्स पर डिवाइड करके हमारे पास मीन आ जाएगा। ये स्टैटिस्टिक का थर्ड ब्रांच है। द लास्ट ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स इज ट्रिग्नोमेट्री। और मैं ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन बता चुकी हूँ। इसमें 3 खास किस्म के फंक्शंस होते हैं, साइन, कोसाइन और टेंजेंट। उसी फंक्शंस को यूज़ करके ये ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स हैं इसके अलग अलग। मैं सिंपल आपको डेफिनेशन बता रही हूँ कि इसमें हम क्या करते हैं, प्रूफ वाले क्वेश्चन करते हैं। यही जो फंक्शन होते हैं इसी को यूज़ करके जो है हम क्वेश्चन की कैलकुलेशन करते हैं। और ट्राई का मतलब है 3, जो मैट्रिक का मतलब है मेजरमेंट। सो इसमें ज़्यादातर जो है इसमें यानी जो ट्राइमेट्री है, यानी 3 एंगल वाले जो मेजरमेंट है वो ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल के में जितने भी एंगल्स इस्तेमाल होते हैं, ट्राइंगल के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है वो इसी ट्रिग्नोमेट्री में है। See you in the next video where I will tell you what are the career in maths and which profession is best for you. So मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।